this is the chapter number 24, Sikh and Marathas power. And in the previous video we had studied about the Sikh power and Maratha power and read about the Shivaji. And we also read about the Shivaji's struggle and Shivaji and Mughal battle. Now today we will read about the administration of Shivaji. So let's start. Administration. The main aim of Shivaji administration was the welfare of his subjects and the organization of an excellent army for the protection of motherland. Shivaji was not only a great general but also a good administrator. शिवाजी जो थे उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही गुड था और वो उनके पास एक एक्सीलेंट आर्मी थी जो कि अपनी मदरलैंड की बहुत अच्छे से रक्षा करना जानती थी. सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट. All the powers of the kingdom were vested with Shivaji. He had unlimited powers, but he used it for the welfare of the masses. He was not an arbitrary ruler. शिवाजी के पास बहुत सारी पावर थी, वो पावर सबसे ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी पावर का यूज़ जो थे वो सही कार्यों में करते थे. उन्होंने अपनी पावर का यूज़ कभी भी किसी को दबाने के लिए नहीं किया. Ashtapradhan. Shivaji had appointed a council of 8 ministers called Ashtapradhan who advised him in carrying out the administration of his territories. Each person was the head of his department. However, all worked under the chairmanship of Shivaji. These Ashtapradhans were Peshwa, Amatya, Samant, Mantri, Sachiv, Pandit Rao, like Purohit, Senapati and न्यायाधीश. शिवाजी ने अपने कोर्ट में अष्टप्रधान नाम से 8 मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया हुआ था जो कि उन्हें सारे एडमिनिस्ट्रेशन को देखने में और बाकी चीज़ों में उनको एडवाइस करते थे. हर पर्सन जो था वो अपने डिपार्टमेंट का हेड था, लेकिन जो सबसे चेयरमैनशिप जो थी वो शिवाजी के पास ही थी. तो वो अष्टप्रधान जो थे वो पेशवा, अमात्य, सामंत, मंत्री, सचिव, पंडित राव, सेनापति और न्यायाधीश थे. अब डिवीज़न ऑफ एम्पायर, सोर्सेस ऑफ इनकम, यू हैव टू रीड दिस कि किस तरह से उनको इनकम होती थी और उन्होंने अपने एम्पायर का डिवीज़न किस प्रकार किया हुआ था. मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन. शिवाजी हैड मेड अरेंजमेंट फॉर अ रेगुलर एंड डिसिप्लिन्ड आर्मी. हिज आर्मी कंप्राइज्ड ऑफ कैवलरी, इन्फेंट्री, आर्टिलरी एंड नेवी. द सोल्जर्स वर स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन्ड एंड कंट्रोल्ड. दे नेवर वेंट ऑन अ रैम्पेज ड्यूरिंग एन अटैक. To protect the holy book like Ramayana, Gita and Quran etc. and to safeguard the women, children and old people from abuse was the important duty of the army. शिवाजी की आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग थी और चाहे नेवी हो चाहे आर्टिलरी हो, सारे क्षेत्र में वो बहुत ही अच्छे से अपनी ड्यूटी को निभाते थे. उनका मेन वर्क जो था अपनी मदरलैंड की रक्षा करना और साथ साथ रामायण, गीता, कुरान इन सब की रक्षा करना और वीमेन, चिल्ड्रन और ओल्ड पीपल जो है उनको किसी भी तरह के हार्म होने से बचाना. यदि कोई दूसरा मुगल या कोई और अटैक करता है तो इन सब की रक्षा करना और अपने मदरलैंड की रक्षा करना उनका काम था. वो कभी भी अटैक के समय कभी भी वो हार नहीं मानते थे और अपनी अंतिम सांस तक बहुत बहादुरी के साथ उनके जो सैनिक थे, उनके जो मिलिट्री थी वो लड़ते थे. शिवाजी was not only a brave general and a diplomat but also an excellent ruler. Because of his policy of religious tolerance, excellent conduct, love for justice and able administration, he became famous as a great ruler. Children, today we will also do exercise of the chapter number 24. So, choose the correct alternative. Khalsa group was organized by Guru Tegh Bahadur. The credit of organization of Maratha power goes to Shivaji. To suppress the power of Shivaji, the Sultan of Bijapur sent Afzal Khan. At the highest position of Shivaji, Ashtapradhan was Peshwa. Now fill in the blanks. First blank you have to fill the Banda Bahadur. Second, Guru Nanak was the first Guru of the Sikh. Third, Shivaji adorned the title of Chhatrapati. Fourth, land, trade and chauth was the source of income of Shivaji's kingdom. Now short answer type questions.
So the first question is, what efforts were made by Guru Gobind Singh to make the Sikh powerful? This answer is in page number 137. This is page number 137. You have to write down the answer from here to here. Guru Tegh Bahadur's son to life. Now question number 2. What education did Shivaji receive in his childhood? This answer is in page number 138. Here is the answer. Shivaji was also cut कर देना है आपको. शिवाजी वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीजियस सेंटिमेंट्स, यहाँ से लेकर के हिंदू एम्पायर यहाँ तक. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. वाई डिड शिवाजी किल अफजल खान? दिस आंसर इज इन ऑल्सो पेज नंबर 138. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. स्ट्रगल विद बीजापुर यहाँ से नहीं लिखना है. द सुल्तान ऑफ बीजापुर यहाँ से स्टार्ट करेंगे. सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. द सुल्तान ऑफ बीजापुर यहाँ से लेकर के ओल्ड लाइफ यहाँ तक. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. राइट शॉर्ट नोट्स अष्ट प्रधान. दिस आंसर इज इन पेज नंबर 140 एंड 141. ये अष्ट प्रधान आपको यहाँ से स्टार्ट करना है लिखना. अष्ट प्रधान यहाँ से लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस टेरिटरीज यहाँ तक, और फिर ये लिखेंगे दीज अष्ट प्रधान्स वर. यहाँ से ये पूरे 8 अष्ट प्रधान के नेम लिखना है. एंड short note B, the military administration of Shivaji. This answer is in page number 141. मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, और ये पूरा यहाँ तक इम्पॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ द आर्मी यहाँ तक आपको लिखना है. नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. क्लैरिफाई द मुगल एंड द सिख रिलेशन. दिस आंसर इज इन पेज नंबर 136 एंड 37. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. लॉन्ग आंसर 1 ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे. गुरु नानक इज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट गुरु ऑफ द सिख, यहाँ से लेकर के मिलिट्री ब्रदरहुड यहाँ तक. इसके बाद कंटिन्यू करेंगे इसको. द 6th गुरु हरगोविंद यहाँ से लेकर मार्टियल सेक्ट यहाँ तक. फिर पेज नंबर 137 का आप लिखेंगे ये गुरु तेग बहादुर सन्स यहाँ से लेकर के लाइफ यहाँ तक. फिर उसके बाद आप आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह यहाँ से लेकर के बंदा बहादुर यहाँ तक लिखेंगे. और फिर ड्यूरिंग द रेन ऑफ फर्रुख सियार यहाँ से लेकर के डेथ यहाँ तक. एंड द पीपल ऑफ द एडजॉइनिंग यहाँ से लेकर के पावर टू अ ग्रेट एक्सटेंट यहाँ तक. ये लॉन्ग आंसर है तो ये आपको पूरा इतना बड़ा लिखना होगा. नाउ लॉन्ग आंसर सेकेंड. शिवाजी हैड excellent administrative ability. Explain. This answer is in page number 140 and 141. शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से लेकर आप स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक लिखेंगे. उसके बाद सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट इसको आपको लिखना है. तो ही हैड यहाँ से लेकर के ये हेडिंग डालेंगे सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, और ही हैड अनलिमिटेड से लेकर के आर्बिटरी रूलर यहाँ तक. देन अष्ट प्रधान के बारे में लिखेंगे. तो अष्ट प्रधान डाल करके ये हिज टेरिटरीज यहाँ से लेकर के पूरे 8 उनके प्रधान के नाम. देन डिवीज़न ऑफ एम्पायर ये आप लिखेंगे, और इसके बाद सोर्सेस ऑफ इनकम ये भी आप लिखेंगे पूरा. और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ये आप मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को नेवी तक लिख लेंगे. और इसके बाद लास्ट में लॉन्ग आंसर ये शिवाजी वॉज नॉट ओनली अ ब्रेव जनरल यहाँ से लेकर के ग्रेट रूलर यहाँ तक लिखना है. तो चिल्ड्रन लॉन्ग आंसर बड़े हैं तो आपको बड़ा आंसर लिखना होगा. Here is your chapter number 24 finished, and you have to paste the picture where needed. And in the previous video we will start chapter 25, our judicial system. So students, complete your fair copy up to chapter number 24.